जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी तथा सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। माननीय शिक्षा मंत्री। नमस्कार। आज की इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गरिमापूर्ण समारोह में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उपस्थित देश की लोकप्रिय जननेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यों के माननीय राज्यपाल, राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, राज्यों की शिक्षा मंत्री महोदयगण, विश्वविद्यालय के कुलपति तथा स्कूल एवं कॉलेज एवं अन्य संस्थानों के संस्थाध्यक्ष, मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। Today is a momentous day in our history when we mark a year of the launch of one of the most landmark policy reforms in India, the New Education Policy 2020. When the world was at its peak of struggling to cope with the COVID-19 pandemic, our government came up with this transformative policy which will have profound, far-reaching impact on the educational landscape of the country, thereby reshaping the destiny of this nation, both in terms of its internal resilience, resources and strength, and its standing in the world. The importance of this document cannot be emphasized enough for its potential role in building a robust nation. The New Education Policy 2020 stands on the four pillars of quality, equity, access and affordability, themes that run through many of the reforms brought about by the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Another significance of the New Education Policy 2020 is that it has come after one of the largest consultation processes in the history of the educational systems globally. This reflects the resolve and vision of our leadership to situate India at the top of the knowledge economy. As we celebrate Amrita Mahotsav or 75 years of India's independence, the NEP will be the guiding philosophy that will nurture, inspire, influence and groom children who today fall between the age of 5 and 15 years. The same category of impressionable and valuable human resource will be the peak of productive age of between 30 and 40 years when the India hits the mark of 100 years of independence or Azadi 100. New Education Policy 2020 prepares this age group as global citizens who exhibit the keen disposition to shoulder collective responsibilities in the face of natural disasters or finding solutions for issues that confront humanity as a whole, solutions that cut across boundaries of culture. The resilience and survival of civilization is a direct consequence of the clarity of thought and its possible people. New education policy prepares our youth to be the flag bearers of a global community which bases itself on scientific thought, critical thinking and humanism. This is the PM Modi's vision and government's mission that we will try to best of our capabilities to implement in letter and spirit. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. Kasturi Rangan and the team of superior intellectuals and academics who drafted this landmark document. I again thank Honorable Prime Minister Modi ji for his presence today and his persistent guidance to the education sector. Sir, I welcome you to this program. Thank you. धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें,
उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान भी सामने आए। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक ई कंटेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध किए गए। एक वर्ष में इस प्लेटफॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ हो गई है। जेईई एंड नीट की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हुई, जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया। अभी नया सिस्टम आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो जो हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयं MOOCs पोर्टल, जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। गत वर्ष में 54 लाख छात्रों ने उस पर एनरोलमेंट कराया। इस नई नीति से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ मिला है। I'm from Cameroon. I'm very thankful for the government of India to give me the opportunity to pass off my education here in this great university. एक तरफ निष्ठा के अंतर्गत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, तो गत एक वर्ष में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक की रचना हुई, जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत की भी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल खेल में विकसित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोदर्पण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई द्वारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने कोविड संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किए और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है, नए भारत की आत्मा को प्राथमिकता देती और हमारी युवाओं को 21वीं सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए गए हमारे कुछ पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। विद्या प्रवेश कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। इंडियन साइन लैंग्वेज। पहचान कर मेरी सीमाएं और सामर्थ्य,
और अधिगम सामग्री अब उपलब्ध है भारतीय भाषाओं के समक्ष, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ISLRTC, NIOS और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बनाया है, जो दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं। अब मैं हूँ सबके साथ और सब है मेरे साथ। निष्ठा 2.0 दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अब निष्ठा अपने नवनिर्मित 68 मॉड्यूल द्वारा माध्यमिक स्तर के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। निष्ठा 2.0 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय पहल। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। CBSE के 25,000 स्कूल्स के ग्रेड 3, 5 और 8 के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सफल में बच्चों का कोर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा आकलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया का एक ईंधन है। भारत की AI रणनीति AI फॉर ऑल की सोच पर बनाई गई है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को सही मायने में AI रेडी बनाने के लिए AI स्किल्स के महत्व की पुष्टि करती है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया आपके लिए लाए हैं AI फॉर ऑल। इस कार्यक्रम को लगभग 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है और ये 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कुछ अन्य पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। Academic Bank of Credit, academic flexibility, multidisciplinary, distributed teaching learning, and multiple entry and multiple exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए UGC द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। UGC द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। AICTE ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग बढ़े। इसके लिए UGC ने क्रेडिट ट्रांसफर के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोबल स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आने से विश्व पटल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर डिजिटल फर्स्ट की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित होगा, ताकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इनोवेटिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा,
जिसका लाभ देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है एनडीएर। स्कूल शिक्षा विभाग तथा आईटी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम शिक्षा के विभिन्न आयामों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण है। NETF प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आदि आयामों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को परामर्श देगा। NETF शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा KG से PG तक शिक्षण और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा, ताकि देश 21वीं सदी में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर के रूप में छलांग लगा सके।